बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू दी शो। मैं हूं आपका मेज़बान रियाज गुल। नाज़रीन, एवरी मंडे 6 to 7 PM मैं लेके आता हूं लीगल शो, जिसमें मैं आपकी लाइव फ़ोन कॉल लेता हूं और आपके साथ शेयर करता हूं इमिग्रेशन लॉ एंड ह्यूमन राइट्स। नाज़रीन, अगर आपको या आपके किसी अजीज़ को इमिग्रेशन से जुड़ा कोई मसला हो तो आप भी कॉल करके अपना सवाल पूछ सकते हैं। तो बिला वक्त ज़ाकिर बढ़ते हैं आज की फ़र्स्ट कॉल की तरफ। जी फरमाइए। हेलो हेलो। Hello. जी फरमाइए। Hello. Yes, can I speak to the solicitor on the TV, please? Yes, my friend, you are on, I think, live. You can ask the question. I'm more than happy to assist you. Okay, thank you very much. Okay, go ahead, please. What's your matter? Okay, hello. Hello. Hello, can I speak to the solicitor, please? Okay, I'm speaking, my friend. You are on air now. You can ask the questions. What's the matter? Okay, hi. I just wanted to ask you a couple of questions. Please. Couple of questions regarding spouse visa extension. Right. Hello. My daughter-in-law came to this country in 9th October 2016. Right. Now, I know we are supposed to apply for extension after 2.5 years. Now, I'd like to ask you, sir, exactly when do we apply for the spouse extension? Okay. Is it from the date of entry? Okay, I will tell you. Okay, other question. Do you have any other questions, sir? In India. Question number one. And question number two is, on the BRP card, the validity is 15th June 2019. Okay. Now, what does this mean? Okay, no problem. You can, I think, let me to answer. You can just watch the TV now. What the laws say, if anybody came in the UK as a spouse visa, they grant a visa for 2.5 years, and normally they will give you the visa for 33 months. So it means that 3 months is the probation times, and then is the 2.5 years to be stay in the UK. So the time is started when she came here, but the extension only can be applied just 28 days prior to the expire. If her application or her BRP saying the expiry of the date is the 15th of June, so it means she can apply anytime by after the 15th or 17th, 16th of May, and then it will be extended for 2.5 years visa. But when they make the application for indefinite, she will be entitled to make the application for the ILR on the completion of the 5 years, the day she entered in the UK. So she need to be count from the day of enter, then she can apply. But if in case she's spending less time in the UK for less than 5 years, and visa is expiring, then she need to be apply for the extension. But at for the time being, she can only make the application for extension as a spouse visa anytime after the 16th of May. Thanks for your call. बढ़ते हैं next call की तरफ। जी फरमाइए। हेलो जी फरमाइए। ये आपसे बात करनी है। जी बिल्कुल, बोले, क्या बात है जी? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी। भाई पूछना ये है कि मेरे हस्बैंड के पास यूरोपियन नेशनलिटी का पासपोर्ट है, उनके पास इटली का, और उनके थ्रू उनके बेटे के पास 5 साल का रेजिडेंट उनको मिला है, रेजिडेंस कार्ड 5 साल का मिला है। और वो बेटा मेरा ऑलरेडी शादीशुदा 1 साल हो गया उसकी शादी को। तो सवाल ये आपसे करना है कि वो ब्रेग्जिट के बाद उसके पापा यानी कि अपनी बहू को यूरोपीय कानून के तहत बुलाएंगे या फिर यूके कानून के मुताबिक वो अपनी बहू को बुला सकेंगे पाकिस्तान से? जो बच्चा है उसके पास डिपेंडेंट वीजा है यूरोपियन का, राइट? जी जी। ये आई थिंक पहले भी आपने या किसी और ने सेम क्वेश्चन पूछा था। देखिए, अंडरस्टैंड करें, इमीडिएट फैमिली क्या होती है, वाइफ एंड द चिल्ड्रन। जब हम कहते हैं डिपेंडेंट वीज़ा अप्लाई करो, तो वो सिर्फ आप अपने बच्चों का या अपनी वाइफ का या अपने हस्बैंड का अप्लाई कर सकते हो अंडर द इमीडिएट फैमिली। अब क्योंकि जो आपका बेटा है, ही इज़ ऑलरेडी ऑन द डिपेंडेंट वीज़ा ऑफ हिज फादर, तो जो अगर उसका बाप या आपका जो हस्बैंड है वो जब स्पॉन्सर करेगा आपकी बहू को, तो वो एज ए एक्सटेंडेड फैमिली मेम्बर अप्लाई करेगा। आज के दिन तो एक्सटेंडेड फैमिली मेम्बर को ऑफ कोर्स एलिजिबिलिटी है कि वो दे कैन मेक द एप्लीकेशन, बट वेल सी कि अगर मार्च में ये ब्रेग्जिट होता है या इस पर इम्प्लीमेंट हो जाता है तो फिर क्या आता है। लेकिन आज की जो सिचुएशन है, ऑफ कोर्स वो जो बच्ची है वो अप्लाई कर सकती है एक्सटेंडेड फैमिली मेम्बर।
या सेकंड जो आपको आपके पास ऑप्शन है कि जब आपके बेटे के पास यहाँ पे पीआर मिल जाएगा, देन ही उसके पास राइट है कि वो डायरेक्ट अपनी वाइफ को एज ए डिपेंडेंट अप्लाई कर सकता है। तो अब आपने देखना है कि कहाँ पे आपका केस स्ट्रॉन्ग होता है, कब आपकी शादी है, कब अप्लाई कर रहे हैं बच्चे का। तो ये सारी चीज़ें बिफोर द ब्रेग्जिट या आफ्टर द ब्रेग्जिट, दोनों सूरतों में अभी तक क्योंकि आपका जो बेटा है वो डिपेंडेंट है, तो वो इमीडिएट फैमिली को वो आगे किसी को स्पॉन्सर करना उसके लिए मुश्किल हो जाएगा। उसका फादर एज ए एक्सटेंडेड फैमिली मेम्बर उसको स्पॉन्सर करेगा। आपकी कॉल का शुक्रिया। लेते हैं नेक्स्ट कॉल। जी फरमाइए। हेलो, अस्सलाम वालेकुम जी। जी वालेकुम अस्सलाम जी। अच्छा सर, मैं थोड़े से आपको हिस्से पहले बताऊंगा क्वेश्चन करने से पहले, लेकिन शॉर्ट होने चाहिए प्लीज, शॉर्ट क्वेश्चन प्लीज। जी मैं शॉर्ट सर। सॉरी सर, मैं 2007 में आया था यूके में, राइट। तो फिर मैं 2016 तक मैं दीगर रहा एज ए स्टूडेंट। राइट। तो अभी मेरे बच्चे हैं 4 साल के, तो फिर जब मेरा वीजा एक्सपायर हुआ, मैंने जो है ना अपने FLRO डाला बच्चों की बेस पे, वो रिफ्यूज हो गया। तो उन्होंने 2 महीने में रिफ्यूज करके, बच्चा 4 साल का था उस वक्त, तो उन्होंने रिफ्यूज कर दिया और राइट ऑफ अपील भी नहीं दिया। फिर हमने JR किया, वो भी रिफ्यूज हो गया। अब अभी तक मैंने कोई केस नहीं डाला। अब बच्चों की एज क्या हो गई है? अभी मेरी बड़ी बच्ची जो है वो 7.5 साल की हो गई है। 7.5 साल। अब जो क्वेश्चन है सर कि वही है कि अभी मुझे होम ऑफिस की तरफ से एक लेटर आया है कि रिटर्न प्रिपरेशन टीम की तरफ से, तो उन्होंने मुझसे मांगे हैं बच्चों के बर्थ सर्टिफिकेट। हाँ ठीक है, आपको अभी तक कोई केस नहीं डाला। राइट। अब JR आपका तो जो फाइनल था JR वो रिफ्यूज हो गया था आपका? जी JR रिफ्यूज हो गया था, उसके बाद फिर हमने कोई केस नहीं डाला अभी तक, सर्निंग पे जा रहे हैं। तो फिर वो रिटर्निंग वालों ने, रिमूवल वालों ने भेजा ना आपको लेटर? हाँ, तो अभी उन्होंने भेजा है कि बच्चों के बर्थ सर्टिफिकेट भेजें, लेकिन मेरा सोलिसिटर ये कह रहा है कि अभी आप बजाय बच्चे का फ्रेश एप्लीकेशन डालने के, हम उन्हीं को ये कहते हैं कि 7 साल की बेस पे हमें वीजा दें। पर आपकी एप्लीकेशन तो पेंडिंग कोई नहीं है। आपकी कोई एप्लीकेशन पेंडिंग है? नहीं, कोई एप्लीकेशन पेंडिंग नहीं है। तो कैसे वीजा देंगे वो आपको? तो अब मैं इसी में कंफ्यूज हूँ। वो मेरा वकील ये कह रहे हैं कि हम इस तरह करते हैं कि बजाय फिलहाल एप्लीकेशन डालने के, चलो देखिए आप ये कहते हैं कि बच्चा, ये एक्सपेरिमेंट तो हो सकता है, लेकिन ट्राई करने में कोई हर्ज नहीं है। अगर आपके पास फाइनेंशियल इशू बन रहा है तो पैसे बचेंगे, ऑफ कोर्स यू कैन ट्राई। लेकिन आइडियली जब तक आपको एप्लीकेशन पेंडिंग नहीं करेंगे, आपने बोला कि एप्लीकेशन की थी, रिफ्यूज हो गई, JR में गया, JR रिफ्यूज हो गया, तो अनफॉर्चुनेटली आपका केस तो कहीं भी पेंडिंग नहीं है, नीदर इन द कोर्ट नॉर इन होम ऑफिस। तो मेरे ख्याल में आपको एक फ्रेश एप्लीकेशन करना पड़ेगी, क्योंकि जब तक आप कोई क्लेम नहीं करोगे देन हाउ यू कैन टेक एनी रिस्पॉन्ड फ्रॉम देम। तो मुझे लगता है कि आप एप्लीकेशन करें। अगर आपके पास फ़ीस का इशू है तो फीस वेवर वाला एप्लीकेशन साल लगा दें, और अपनी तमाम के जो फोटोग्राफ्स और प्रूफ बना के 7 साल की बेस पे अप्लाई कर रहे हैं। पहली बात तो ये थी कि जब अपने पहले अप्लाई किया था बच्चे 4 साल के थे। फिर सेकंड ये कि वो एप्लीकेशन डिसाइड हो गई, रिफ्यूज़ हो गई, उसको आपने चैलेंज किया, JR में गया, JR रिफ्यूज़ हो गया। अब देखा जाए तो जो आपने तमाम जो अवेलेबल रेमेडी थी वो सारी आपने सक्सेस कर ली हैं। अब आपका कहीं पे भी कोई केस पेंडिंग नहीं है। बट एनीवे, अगर आपका कोई वकील कह रहा है तो मैं समझता हूँ शायद उसने कोई और डॉक्यूमेंट्स उसके पास हों या उसको कोई और थॉट हो, बट आइडियली वो शायद आपके फाइनेंशियल सर्कमस्टांसेस को देखते हुए उसकी ख्वाहिश में है कि चलो शायद पैसे बच जाएँ बेचारों के, या हम ट्राई कर लेंगे, अगर मिल गया तो वेल एंड गुड। लेकिन अगर आपको जल्दी नहीं है ऑफ कोर्स आप ट्राई कर लें, लेकिन अगर नहीं तो फिर आइडियली यू शुड मेक द एप्लीकेशन, ताकि वो आपको आपका क्लेम हो तो फिर वो रिस्पॉन्ड हो सके। आपकी कॉल का शुक्रिया। लेते हैं नेक्स्ट कॉल। जी फरमाइए। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। सर मैंने एक चीज पूछी थी आपसे, जो होम ऑफिस की जो प्रीमियर सर्विस जो स्टार्ट की थी इन्होंने, इनमें कुछ चेंजिंग आई है? ये प्लीज बता दें कि आई मीन जो उसी वो दिन फैसला देते हैं, पता नहीं एक्स्ट्रा पैसे लेके, कोई आई मीन उनमें कोई चेंज है? आई मीन ज्यादा टाइम मुझे बताइए, आपका सवाल क्या है? ये कोई 48 डे। हाँ जी भाई, आपका सवाल क्या है? जनरल सवाल पूछ रहे हैं, आपका पर्टिकुलर क्वेश्चन है कि आपका? मतलब जनरल यही सवाल था, लेकिन वो मुझे किसी ने बताया था, मैंने अप्लाई करना था प्रीमियर सर्विस पे, तो वो मुझे कह रहे थे इनमें कुछ चेंजिंग आई है, फीस बढ़ाई है इन्होंने, और साथ में कुछ टाइम ज्यादा लिया है इन्होंने। चेंज हुआ इसमें? मेरे भाई कौन सा वीजा अप्लाई करना आपने? आई मीन इंडेफिनिट अप्लाई करना है मैंने। किस बेस पे? 10 ईयर बेस पे। 10 ईयर्स की बेस पे। ओके, ये पुराना प्रोसीजर ही है, लेकिन जो 10 साल की बेस पे वीज़ा अप्लाई कर रहा है ऑफ कोर्स उसके पास राइट है कि वो एप्लीकेशन करेगा, और उसको प्रीमियर सर्विस का मतलब ये हो गया कि आप अपने डॉक्यूमेंट्स लेके जाओगे, और वो विद इन 2 डेज़ आजकल डिसाइड कर रहे हैं, और उसकी एडिशनल फीस चार्ज कर रहे हैं 710 पाउंड समथिंग। तो फिर भी जब आप अप्लाई करें चेक कर लें
कि जब आप अप्लाई करें उस वक्त प्राइस क्या है, इसकी क्या फ़ीस है। लेकिन क्योंकि हो ये रहा है कि आप ऑनलाइन एप्लीकेशन करते हो, उसको फिल करते हो, सबमिशन करते हो, अपॉइंटमेंट बुक करते हो और अपनी फ़ीस वगैरह पे करते हो, तो आपके पास राइट आता है कि आपने प्रीमियम सर्विस लेना है या स्टैंडर्ड, तो वहाँ क्लिक करोगे तो फिर ऑटोमेटिक आपके पास सारी ऑप्शन आ जाएंगी। तो इसलिए बट एनीवे जो आपका सवाल था, यस कि 710 पाउंड लेके फास्ट टैग में डालते हैं और 2 दिन में डिसीजन ले रहे हैं। आपकी कॉल का शुक्रिया। लेते हैं नेक्स्ट कॉल। जी फरमाइए। हेलो जी फरमाइए। हेलो जी फरमाइए मेरे भाई। हेलो 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 Yes. जी फरमाइए। सलाम अलैकुम। वालेकुम। आप टीवी बंद करें, बात करें मेरे भाई फ़ोन के ऊपर। जी फरमाइए हाँ टीवी तो बंद है। प्लीज़। मेरा नाम मोहम्मद अफजल है। तो मैंने वो सालन किया था लास्ट ईयर अप्रैल में। तो फिर मैं उसके बाद मेरा स्क्रीनिंग इंटरव्यू क्रेडिट में आया जुलाई में। तो उन्होंने कार्ड इशू किया 2 साल का मुझे स्क्रीनिंग इंटरव्यू में, और बायोमेट्रिक उधर ही क्रेडिट में लिया सेकंड फ्लोर में। फिर उसके बाद वो जो मेन इंटरव्यू आता, मैं आपके पहले भी शो में फ़ोन किया था कि 4 से 5 महीने बाद आ जाता है मेन इंटरव्यू। तो जुलाई में स्क्रीनिंग हुआ था। फिर मेरे अभी नवंबर में केस वर्कर ने मुझे लेटर भेजा कि आप अपने 19 पेज क्वेश्चन हम भेजे जो इंटरव्यू के होते हैं, आप क्यों नहीं जाना चाहते, आपको जो शिकायत डाल रहा है वो सारा डिटेल लिख के मैंने उन्होंने एक डायरी भेजी थी। सवाल क्या आपका मेरे भाई, सवाल क्या आपका? हाँ जी, तो मैंने वो भेजी। फिर उसमें भेजा था कि आपके इसके बाद केस वर्कर मेक अ डिसीजन ऑन योर असाइलम एप्लीकेशन। ओके। फिर वो भेजी नवंबर में। तो उसके बाद 3 वीक बाद मुझे केस वर्कर का ही लेटर आया कि बायोमेट्रिक और टेक पिक्चर लंदन ब्रिज पोस्ट ऑफिस आप देंगे, तो इसके बाद अगर आपका केस कामयाब होता तो हम आपको कार्ड आरपी कार्ड रेजिडेंट इशू कर सकते हैं। ओके। सवाल क्या मेरे भाई, सवाल क्या आपका? सवाल ये था कि मैंने अभी बायोमेट्रिक दिए 20 दिसंबर को, अभी तीसरा महीना है लंदन ब्रिज में। तो उसके बाद थैंक यू मच अप्रिशिएट। सिंपल करें कि मैंने बायोमेट्रिक दिए हैं दिसंबर में और अब मैं वेट कर रहा हूँ, क्या देर लगेगी? देखिए टाइम नहीं है, असाइलम वाले मैटर में बिल्कुल कोई टाइम नहीं दे सकते हम लोग आपको। हम नॉर्मल कहते हैं कि जो स्क्रीनिंग इंटरव्यू के बाद जो मेन इंटरव्यू है वो 6 माह के अंदर आ जाता है, लेकिन अगर नहीं आता बैकलॉग की वजह से वो अनफॉर्चुनेटली। बस अच्छी बात ये है कि जो केस वर्कर है वो आपके साथ कीप इन टच है, आपका उससे कम्युनिकेशन हो रही है। अब एक प्रोसीजर चीज़ें हो रही हैं, आप वेट करें। आपने पहले जो क्वेश्चन फिल किया, फिर बायोमेट्रिक दिए, अब दिसंबर हुआ, अब फरवरी का महीना मार्च का आ गया, आप वेट कर लें। वो आपको या आपके वकील को इन्फॉर्म कर देंगे कब आपका डिटेल्स इंटरव्यू है। लेकिन नॉर्मली ये 6 माह में आ जाता है, लेकिन जुलाई में किया था, 6 माह से ऊपर हो गए तो कोई बात नहीं। अब आप कीप इन टच विद देम, तो वो आपको इन्फॉर्म करेंगे कि आपका इंटरव्यू है। उस वक्त जाके अपना पूरा जो भी आपकी फैक्चुअल चीज़ें हैं वो दिखाएं, जाके उनको बताएं। तो आई विश के आपका क्लेम जो है वो सक्सेस हो। आपकी कॉल का शुक्रिया। लेते हैं नेक्स्ट कॉल। जी फरमाइए। हेलो 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 जी फरमाइए। हेलो जी फरमाइए मेरे भाई, यू आर लाइव नाउ। गुल साहब, मुझे पता है 2 लाख पाउंड जमा कराने का वीजा मिलता है, और जो एक स्कीम इनकी 50,000 पाउंड जमा कराने वाली, ये इसमें क्या प्रोसीजर इनका? नहीं, वो जो 50,000 वाली स्कीम है वो आम बंदों के लिए नहीं है, वो उनके लिए है जो यहाँ पे किसी यूके बेस स्पॉन्सर से काम करेंगे। उसका मतलब ये है कि वो ग्रेजुएट एंटरप्रेन्योर उसको बोलते हैं, या कोई सीड फंडिंग कंपनीज हों। मतलब जो गवर्नमेंट के अगर अदारे आपको या कोई इंस्टीट्यूट या यूनिवर्सिटी आप कहती है कि ये बच्चा बड़ा पढ़ा लिखा है, बड़ा काबिल है, और उसको हम 50,000 पाउंड देते हैं, वो आपके इंडिविजुअल या पर्सनल फाइनेंस से नहीं 50 चलता, वरना 2 लाख है। और यूके के अंदर से 2 लाख वाला एप्लीकेशन नहीं कर सकते। जिन लोगों ने फॉरेन से अप्लाई करना हो उनको अपने 2 लाख से कर सकते हैं, या यूके के अंदर कोई बंदे ने किसी डिग्री की हो तो उसकी यूनिवर्सिटी बोले कि ये बंदा बड़ा काबिल है, इंटेलेक्चुअल है, एंड ड्यू टू हिज इंटेलेक्चुअलिटी वी जस्ट वांट टू गेन समथिंग, हम वी आर मोर देन हैप्पी टू बी गिव 50,000 पाउंड्स, तो तब वो एंटरप्रेन्योर ग्रेजुएट एंटरप्रेन्योर पे अप्लाई क्वालिफाइड करता है। तो अदरवाइज़ जो आम लोग हैं वो 2 लाख वाली कैटेगरी में क्वालिफाइड करते हैं। आपकी कॉल का शुक्रिया। नाज़रीन, टाइम का ब्रेक का स्टे विद अस, मिलते हैं वक्फे के बाद। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। लेते हैं कॉल। जी फरमाइए। हेलो अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। क्या हाल चाल है गुल साहब? मैं अली बात कर रहा हूँ, कैसे हैं? ठीक है, अल्लाह का शुक्र, बिल्कुल ठीक। आप सुनाएं कैसे हैं? जी ठीक ठाक। गुल साहब, मेरा क्वेश्चन ये है कि मेरी इनिशियल एप्लीकेशन स्टूडेंट पे थी,
राइट। तो होम ऑफिस ने मुझे बाद में कहा हियरिंग से पहले कि अगर आप कोई फर्दर नोटिस 120 में आर्टिकल 8 और ह्यूमन राइट्स में कोई ऐड करना चाहते तो आप कर लें। तो मैंने की, तो वो होम ऑफिस ने रिफ्यूज कर दी थी मेरी। तो फिर हियरिंग पे अब मेरी अलाउ हो गई है ह्यूमन राइट्स पे भी और टॉइक पे भी, दोनों पे। अब मैंने आपसे ये पूछना है कि इस पे अब मुझे वीजा कौन सा मिलेगा? आपको ह्यूमन राइट्स की एप्लीकेशन आपकी ग्रांट हुई है? जी, ह्यूमन राइट्स पे आर्टिकल 8 पे। मुझे लगता है कि फिर आपकी जो अगर आर्टिकल 8 पे जाते हैं तो आपको 2.5 साल का वीज़ा मिलेगा, वो 10 साल के रूट में डाल देंगे आपको। तो अगर मैं पूरा लीगल हूँ, 8 साल हो गया मुझे यहाँ पे, मेरा एक दिन भी ओवरस्टे नहीं था, तो मैं 10 साल बाद इंडेफिनिट अप्लाई कर सकता हूँ अगर मुझे 2.5 साल का देते हैं? दिया उनके बच्चे, फैमिली थी आपके साथ यहाँ पे है क्या? हाँ जी, हाँ जी, मेरे हम मियाँ बीवी इकट्ठे आए थे, 2 बच्चे यहाँ पे हुए हैं मेरे, एक 3 साल का और एक 10 महीने का। ओके, अभी दोनों आपको लेटर आया, कार्ड आया, क्या आया आपको? नहीं, अभी तो अपील अलाउ हुई है ना। अपील अलाउ हुई है ह्यूमन राइट्स पे, हाँ ठीक है, वेट करें। अभी तो जब होम ऑफिस का लेटर आएगा वो बता देंगे कि आपको 2.5 साल का वीज़ा मिला है, दो कि आप अंडर द इमिग्रेशन रूल्स क्वालिफाइड नहीं करते, ड्यू टू योर सर्कमस्टांसेस हम आपको ग्रांट कर रहे हैं वीज़ा। तो या तो वहाँ पे आपके जो काउंसिल थी या बैरिस्टर था वो बहस करता कि मैंने ह्यूमन राइट्स पे वीज़ा नहीं लेना, हमें इनका जो वीज़ा है वो अंडर द इमिग्रेशन रूल्स क्वालिफाइड किया जाए या इनको एक्सटेंशन दी जाए, जो भी आपका क्लेम था। अब अगर वहाँ पे आपकी ये बात डिस्कशन नहीं हुई या इस पर आपने फाइट नहीं किया, जब आपका जो सबमिशन थी वो 2 पॉइंट पे थी कि द एप्लीकेशन शुड बी कंसिडर्ड द ह्यूमन इमिग्रेशन रूल्स एंड द ह्यूमन राइट्स। तो अगर पहले आपने मान लिया ह्यूमन राइट्स वालों को तो फिर तो शायद आपको इसको चैलेंज करना मुश्किल हो जाएगा। लेकिन अगर आपने कहा कि नहीं हमें ह्यूमन राइट्स पे ना दो, हमें सिर्फ इमिग्रेशन रूल्स को फॉलो करें, और वहाँ पे आपने बहस की है, सबमिशन दी है और उस पर शायद कोई देखा जा सकता है। लेकिन मुझे लगता नहीं कि जब जज होते हैं वो पहले पूछ लेते हैं कि आपकी जो सबमिशन है प्लीज़ उसमें दें, हम उसको कंसिडर करते हैं। तो मुझे लगता है कि आपको जो वीज़ा ग्रांट हुआ है या अपील आपकी अलाउ हुई है वो इस वजह से हुई है कि जो आपकी सबमिशन थी या जो आपकी ग्राउंड थी वो उसमें आपने ह्यूमन राइट्स को इंक्लूड किया था। तो अगर आपको वीज़ा मिलेगा तो ये 2.5 साल का होगा और 10 साल के बाद आप इंडेफिनिट क्वालिफाइड करेंगे। बट आपके पास राइट है कि अगर आप 10 साल पूरे कर लें तो उसे चेक कर लें कि अगर आपने वीज़ा अप्लाई किया और उसके बाद आपका कोई ब्रेक 3C नहीं ख़त्म हुई थी और आप JR के बगैर ही आपकी अपील चलती रही, अपील में आपको अलाउ हो गया है, तो देन देयर इज़ अ गुड चांस कि आप 10 साल की बेस पे अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन आप वेट एंड सी, जब लेटर आएगा उसके बाद बेटर होगा कि आप किसी वकील के पास चले जाएँ, उनको दिखाएँ कि ये लेटर है और मेरा किसी जगह पे भी वहाँ पे ब्रेक नहीं है और इसके बावजूद मुझे उन्हें ह्यूमन राइट्स दिया है, तो मुझे बताएं कि मेरे पास कौन सी रेमेडी या ऑप्शन अवेलेबल है। अगर आप मुझसे रब्ता करना चाहें मोर देन वेलकम। लेकिन आइडियली ये होगा कि आप जब आपके पास लेटर आए होम ऑफिस से उसके बाद डिस्कस करें, वो आपका बेस्ट टाइम होगा। आपकी कॉल का शुक्रिया लेते हैं। नेक्स्ट कॉल जी, फरमाइए। हेलो हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। मेरा नाम सलमान है सर। मैं आपसे पूछना चाह रहा था कि मैं 2017 में आया था स्पाउस वीज़े पे, तो मेरी एक्सटेंशन आ रही है 2020 जनवरी में। तो प्रॉब्लम ये आ रही है कि इनकम रिक्वायरमेंट का इशू आ रहा है कि मेरी जो पे है वो तकरीबन 15,000 समथिंग बन रही है, बट मेरी वाइफ जॉब स्टार्ट करनी है उसने, बट उसका जॉब मतलब वो कर रही थी क्योंकि हमारा बेबी था तो मैटरनिटी लीव पे थी। तो अभी प्रॉब्लम ये है कि वो अभी फिर मैटरनिटी पे उसने जाना है अगस्त में, तो उसकी जॉब तो मतलब स्टार्ट कर रही है, तो वो उसके बाद ये होगा मैटरनिटी पे जब जाएगी तो पे मैटरनिटी में फुल 3 मंथ्स आती है और उसके बाद फिर पे हाफ होगी, तो हमारी इनकम रिक्वायरमेंट नहीं पूरी होगी 18,600 वाली। तो आप क्या करते हैं मेरे भाई? हेलो आप जॉब क्या करते हैं? आप नहीं, आप जॉब करते हैं? जी मैं जॉब कर रहा हूँ। ओके, तो आपकी इनकम मिला के भी 18 नहीं बन रही? नहीं, मेरी इनकम तकरीबन 16,000 बन रही है, तो मेरी वाइफ जॉब करती है, वो तकरीबन 12 आवर्स करेगी, तो उसके साथ हमारी 19,000 प्लस हो जाती है। लेकिन प्रॉब्लम ये आ रहा है कि वो मैटरनिटी पे जा रही है अगस्त में, हमारा बेबी ड्यू है, तो फिर हमारी इनकम जो है वो लो हो जाएगी। आप अपनी जॉब बढ़ा लो, सेकंड जॉब कर लो। लॉ ये कहता है कि जब अपने एक्सटेंशन अप्लाई करनी हो, स्पाउस पे हो, तो ये कंडीशन नहीं है कि आपकी वाइफ लाजमी काम करे तो 18 बने फिर करना आपने। अगर आपकी इनकम 18 से बढ़ा लो, ये कीप इन माइंड कि ये इनकम वाला बहुत क्रिटिकल रिक्वायरमेंट्स हैं, यू हैव टू फिल दिस क्राइटेरिया। तो अगर आपकी इनकम अपने शॉर्ट फॉल आ रही है, 16 कमा रहे हैं, 18 चाहिए, 2,000 पाउंड है, स्टार्ट द पार्ट टाइम जॉब। लेकिन आप अगर पार्ट टाइम
जी प्लीज। लिए मुझे 12 मंथ की पे स्लिप देनी होगी या नहीं, 6 मंथ की भी चल जाएगी? आपने सिर्फ ये प्रूव करना है या एस्टेब्लिश करना है कि आपने वीज़ा अप्लाई करने से 12 महीने पहले आपकी और आपकी मिसेज की मिला के इनकम फ्रॉम सोर्स ए बी सी, या अपने 5 आपके सोर्स ऑफ इनकम होंगे, पांचों को मिला के 4 को मिला के जो आपकी इनकम बनी 18,600 पाउंड बनी है। अगर आप ये पूरा कर जाएंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। लेकिन वो 6 महीने वाला मैटर करता है उस वक्त जब आप ये करते हो कि आपने एक एग्जामिशन पे जाना हो कि आपने इनकम आपकी कंसिस्टेंट है, सेम जॉब सेम रोल सेम इनकम आ रही हो, तो आप 6 महीने वाले कैटेगरी में जा सकते हो। बट आपके पास वेल बिफोर टाइम आपको पता चल गया है। मेरी आपको एडवाइस है कि वीकेंड पे जॉब स्टार्ट करें, एडिशनल काम करें, ओवर टाइम करें। ओवर टाइम का जो इनकम है वो भी एक्सेप्टेबल है। इन एनी मीन्स यू एंड योर वाइफ बोथ मेक इनकम, तो वो उसको काउंट किया जा सकता है। आपकी कॉल का शुक्रिया। लेते हैं नेक्स्ट कॉल। जी फरमाइए। हेलो सर, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। सर मेरा आपसे एक क्वेश्चन है। मैं अभी 28 तारीख को लास्ट पे मेरा मतलब है कोर्ट हुआ है, तो अभी तक डिसीजन नहीं आया। क्या अपील अलाउ हुई है? अपील अलाउड हुआ था असाइलम में, पहले रिफ्यूज हुआ था। 2016 में मैंने जो अपील asylum का किया मैटर था। है वो जज कहते हैं कि हम 10 दिन में आपको भेज देंगे, लेकिन नॉर्मली 10 दिन 2 वीक में आ जाता है। लेकिन अगर ना आए तो 2 महीने वेट कर लें। अगर कोई जज बिजी हुआ तो शायद वो अपनी, क्योंकि जो जज आपकी हियरिंग लेते हैं वो इसके बाद फिर अपना जो डिसीजन है वो टाइप करते हैं, तो इस वजह से वो सम टाइम बिजी हों तो लेट हो सकता है। लेकिन अगर उसने कहा था 10 दिन में और ऊपर हो गए तो थोड़ा सा वेट करें। आपको या आपके वकील को जो फाइनल डिसीजन होगा वो उसकी कॉपी मिल जाएगी। आपकी कॉल का शुक्रिया। लेते हैं नेक्स्ट कॉल। जी फरमाइए। Assalamu alaikum. वालेकुम सलाम जी। How are you? Not too bad, sir. Yes, brother. My question is like currently I'm staying in UK about country is running 9 years and 4 months. Right. To be apply for the ILR in 10 years route, right. It will be in October 28. It will be 10 years, but before that, 1 month before 1 month 28 days before my visa is expiring. So, what do you suggest for that? Like, how can I reach that 10 years route, please? Okay. On what visa you are at the moment? I'm on dependent visa right now. Dependent of? My wife. No. What's she's studying. Okay. You are the dependent of the tier 4, right? Yes, right. Yes. Okay. What the law say? And is there any chance your wife can make the extension and you can apply as a dependent for the extension or no? I mean, there is a chance she can extend 1 year more because she's doing like a PhD as DBA. Right. So she can extend 1 year more. Thank you, my friend. What the law say? Law say if anybody live in the UK consistently for the 10 years and continuously without a break, yes, you can make the application for the ILR on the basis of long residency. Okay, the question is now they say the 10 years. So you only can make the application on completing the 10 years, or you can make the 28 days before if your visa expiring. But if your visa expiring more than that or more than 28 days, then ideally I advise you better you can make the extension because your wife is entitled to make the application as an extension for the tier 4, and at the same time you can apply for the tier 4 dependent. Thus they can be made by same day. And once you grant it, then you at least you can secure your status in the UK. So minute you got and complete 10 years, the next day you can apply ILR on the basis of 10 years. That will be the best route. Thanks for your call. बढ़ते हैं next call की तरफ। जी फरमाइए। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। जी मुझे अपने वीजे के बारे में आपसे पूछना था। मैं 3.5 years बिफोर यहाँ स्पाउस वीजे पे आई थी और लास्ट ईयर मेरा वीजा एक्सपायर हो गया, तो मुझे 2.5 year मोर एक्सटेंशन मैंने ली है। तो आप 2.5 year आफ्टर जब मैं अपनी इंडेफिनेट के लिए परमानेंट वीजे के लिए अप्लाई करूंगी, आई एम अ फुल टाइम वर्कर, तो मुझे स्टिल प्रूव करना होगा कि आई एम स्टिल लिविंग विद माय हस्बैंड और मेरे हस्बैंड का पेपर वर्क मुझे चाहिए होगा, मीन उनकी वेज स्लिप। बिल्कुल। जो लोग यहाँ पे ऑफ कोर्स जो लोग यूके में स्पाउस वीजे पे आते हैं, पहले 2 साल का स्पाउस वीजा होता था बट उन्होंने 5 साल का कर दिया। इसको बेसिकली देखा जाए तो इंग्लिश वर्ड में कहते हैं प्रोबिशन पीरियड, कि वो चेक करना चाह रहे हैं कि क्या आपका जो रिलेशनशिप है स्टिल सबसिस्टिंग है और आप ये लास्टिंग कर रहा है, आप इकट्ठे रह रहे हो। अगर ये दोनों चीज़ें प्रूव करनी इसलिए ज़रूरी होती हैं कि ये कंडीशन है फर्स्ट कि जो लोग अपने आप को रिलेशनशिप को मेंटेन कर सकते हैं या उनकी ये सबसिस्टिंग है रिलेशनशिप, तो तब वो क्वालिफाइड करते हैं फॉर द सेटलमेंट। लेकिन अनफॉर्चुनेटली अगर इस दौरान कोई मसला बन जाए,
वो कोई ज़्यादती हो रही हो, द विक्टिम जिसको बोलते हैं डोमेस्टिक वायलेंस का विक्टिम हो रही हो, सपोज जो मेल और फीमेल, then they can apply under the other route. But normally if you're applying on the base of the spouse visa under the FLRM, then you need to be established, you've been in a relationship still is subsisting, and you have to attach all the supporting documents from your spouse and yourself, and then they can grant the extension under as a ILR. Otherwise, unfortunately, your application can be refused on the basis of if you're applying just on its own, and there is no reason why you're applying and your husband is not sponsoring, then can be unfortunately critical issues. थैंक्स फॉर योर कॉल। बढ़ते हैं नेक्स्ट कॉल की तरफ। जी फरमाइए। हेलो जी फरमाइए। हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी ये मुझे एक क्वेश्चन की जरा डिटेल से जवाब चाहिए था। बहुत शुक्रिया आपका इस प्रोग्राम के लिए। वेलकम जी। मेरे हस्बैंड जो है वो ब्रिटिश है और मैं स्पोर्ट्स वीजे पे, और मुझे 5 साल हो गए। राइट। और दूसरा ये कि ILR के लिए मुझे कौन कौन से कागजात की जरूरत है। तीसरी बात ये कि ILR एंड नेशनलिटी क्या मैं एक साथ अप्लाई कर सकती हूँ। चौथी ये कि NHS की जो फीस है वो मुझे देनी पड़ेगी या नहीं। और पांचवी बात है कि अगर मैं विंडो पर जाती हूँ तो क्या वहाँ पर कोई इंटरव्यू वगैरह होगा। ये सारी बातें आप डिटेल से प्लीज बता दीजिएगा। डिटेल टाइम शॉर्ट और लाइव प्रॉब्लम होता है, लेकिन कोशिश करता हूँ डिटेल तो खैर मैं ना दे सका, लेकिन सिंपल सी बात है कि जो लोग स्पाउस वीज़े पे यहाँ पे हों 5 साल पूरे करते हुए वो अपना इंडेफिनिट अप्लाई कर सकते हैं। नेशनलिटी उस वक्त नहीं कर सकते, लेकिन जब आपको इंडेफिनिट मिल जाएगा उसके बाद आप इंटाइटल हैं वेरी बेशक नेक्स्ट डे अप्लाई कर लें, लेकिन नॉर्मली 12 महीने होते हैं, लेकिन ये नेशनलिटी जो है वो उनकी डिस्कशन है। अगर आप नेक्स्ट डे भी अप्लाई करते हो तो वो ग्रांट कर सकते हैं होम ऑफिस। नंबर 2 इंडेफिनिट के टाइम आपको IHS नहीं चाहिए। नंबर 3 आपने कहा सेम डे या सेम डे आप जा सकती हैं। नंबर 4 डॉक्यूमेंट्स आपने बोला आपको लाइफ इन यू कैन B1 पास करना पड़ेगा, और उसके अलावा कि आपने 5 साल इकट्ठे रहे हो, दोनों मियाँ बीवी के पासपोर्ट्स, ये प्रूफ देने पड़ेंगे। इसके बाद मेरे ख्याल सारे सवाल के आंसर हो गए 5। कोई और ऐसी बात हो तो देखा जा सकता, लेकिन जो आपका मोटा मोटा सवाल था कि NHS में पे नहीं करना पड़ता, सेम डे अप्लाई कर सकते हैं, नेशनलिटी साथ नहीं हो सकती, इंडेफिनिट के बाद अप्लाई किया जा सकता है, और आपको लाइफ इन यू कैन B1 पास करना होगा। आपकी कॉल का शुक्रिया। लेते हैं नेक्स्ट कॉल। जी फरमाइए। हेलो, लेते हैं नेक्स्ट कॉल। आई थिंक ये कॉल ड्रॉप हो रही है। लेते हैं नेक्स्ट कॉल। जी फरमाइए। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। जी जी मैंने 1 साल के बाद अप्लाई करना है इसका इंडेफिनिट के लिए, तो मैंने पूछना था कि मेरे कोई महीना पहले मेरे ड्राइविंग लाइसेंस पे फिक्स पेनल्टी और 3 पॉइंट लग गए हैं। राइट। तो क्या ये कन्विक्शन है, और अगर कन्विक्शन नहीं है तो क्या एप्लीकेशन में इसको मेंशन करना ज़रूरी है नहीं है? ओके पहली बात तो यह है कि जब आप इंडेफिनिट अप्लाई करेंगे आपने मेंशन करना है, आपने हाइड नहीं कर सकते, इन्फॉर्मेशन देना मस्ट है। आपने इन्फॉर्म करना है कि अनफॉर्चुनेटली आई गॉट 3 पॉइंट्स एंड दिस फाइन, उसकी कॉपी साथ लगा दें, कोई प्रॉब्लम नहीं। नंबर 2 इंडेफिनिट के टाइम आपको 3 पॉइंट्स से आपका इंडेफिनिट स्टॉप नहीं हो सकता, इसमें कोई हर्ज नहीं है, आपको इंडेफिनिट फिर भी ग्रांट हो जाएगा। अब थर्ड ये है कि जब आप नेशनलिटी, आप सुने जी, अब सारे आंसर दूंगा, आप प्लीज टीवी पे सुने। अब थर्ड जो आपका सवाल ये था कि आप अगर जब नेशनलिटी अप्लाई करेंगे उस वक्त एक प्रॉब्लम आपको आएगी कि नेशनलिटी की ये कंडीशन है कि जो आपका करैक्टर है वो नीट एंड क्लीन होना चाहिए, और किसी किस्म का अगर आपको पॉइंट लगे हैं तो फिर आप 3 साल के लिए बाहर होते हो, तो आप 3 साल के लिए नेशनलिटी अप्लाई नहीं कर सकते। इसका मतलब ये हुआ कि आपको इंडेफिनिट मिल जाएगा नेक्स्ट ईयर, बट जो नेशनलिटी है वो जब आपको पॉइंट्स लगे हैं इस टाइम से लेके 3 साल वेट करना पड़ेगा, जो कि नेशनलिटी इंडेफिनिट मिलने के 2 साल फर्दर, तो तब आप नेशनलिटी की एप्लीकेशन करेंगे ताकि आपकी फ़ीस ज़ाया ना हो। दिस इज़ आंसर। थैंक्स फॉर योर कॉल। बढ़ते हैं नेक्स्ट कॉल की तरफ। जी फरमाइए। टाइम में हुआ छोटी सी ब्रेक का, स्टे विद अस, मिलते हैं वक्फे के बाद। कम बैक आफ्टर ब्रेक। लेते हैं कॉल। जी फरमाइए। हेलो जी फरमाइए। जी वकील साहब से बात हो सकती है? जी आप लाइव हैं, सवाल पूछें क्या आपका मेरा भाई? जी मेरी वाइफ के पास ना 2.5 साल की डिस्कशन लीव है, उसको पहले हस्बैंड की बेस पे मिला था, बच्चा उसका ब्रिटिश जो है, उसके बाद उसको डिवोर्स वगैरह तो नहीं थे, सेपरेट हो गए थे, तो मगर मैंने उससे शादी की है, उससे मेरा एक बच्चा, ठीक है, तो क्या मेरे पास स्टेटस नहीं है, मुझे वो स्टेटस मिल जाएगा?
2.5 साल का जो मेरी वाइफ के पास, और मेरे बच्चे को भी 2.5 साल का स्टेटस मैंने अप्लाई किया हुआ है। ओके देखें, अब जो बच्चे पे डिपेंड करता है। अब ये सिचुएशन ये जा रही कि आपकी जो वाइफ है उसके पास एक बच्चा है जो उसको एक्स हस्बैंड के रिलेशनशिप से उसके साथ था, उससे उसकी नेशनलिटी है और वाइफ को उसके एज ए डिपेंडेंट मिल गया। अब आपने 2.5 साल का उसको मिला था, 2.5 साल का। ठीक है, अब आपने उस पर वीज़ा अप्लाई करना ऑफ कोर्स, क्योंकि आप क्योंकि फैमिली यूनिट में जा रहे हो, आप उसके डिपेंडेंट अप्लाई करेंगे क्योंकि उसमें और इस रिलेशनशिप से आपके बच्चे हैं, क्योंकि बच्चों के इंटरेस्ट को हमेशा प्राइमरी कंसिडर किया जाता है। आपको अंडर द ह्यूमन राइट्स आपके पास राइट है एप्लीकेशन करें कि दो कि मेरे पास स्टेटस नहीं है, लेकिन क्योंकि मेरा बच्चा है और बच्चे की जो माँ है उसके पास यूके में वीज़ा है और उस माँ का जो एक बच्चा है वो ब्रिटिश नेशनल है, तो ये एक ट्रेल है कि कोई बंदा अगर एक भी यहाँ से अनफॉर्चुनेटली रिलोकेट होगा, यहाँ से मूव होगा, तो बाकी सारी की सारी जो फैमिली है वो डिस्टर्ब होगी। तो बेसिकली ये अपने अपने केस को इस्टेब्लिश करना है और उनको ये मतलब जो केस वर्कर उसको ये आसानी पैदा करनी है कि उसको अंडरस्टैंड करना हो, क्योंकि ये केस अंडर इमिग्रेशन रूल्स नहीं आता। ये आपने तमाम जो फैक्चुअल चीज़ें हैं वो बतानी है, उसका एविडेंस देना है। मुझे लगता है क्योंकि ये दो बच्चे की और फिर उसकी माँ और उसके बच्चों के बाप का इशू है, ऑफ कोर्स ये हम उसको पॉसिबली कंसिडर करना चाहिए। अगर कोई मसला बनता है उसको आप चैलेंज कर सकते हैं, बट आपके पास राइट है, बिल्कुल आप एप्लीकेशन करें। आप यहाँ पे वीज़ा अप्लाई करेंगे अंडर द ह्यूमन राइट्स, दे शुड कंसिडर एंड आई विश के आपको पॉजिटिव रिजल्ट मिले। आपकी कॉल का शुक्रिया, लेते हैं नेक्स्ट कॉल। जी फरमाइए, जी फरमाइए। हेलो हेलो जी, जी फरमाइए। हेलो जी फरमाइए। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम, फरमाइए, अब लाइव है मेरे भाई। पढ़ते हैं जी, मेरा क्विकली एक क्वेश्चन है कि 7 ईयर की बेस पर मुझे और मेरी फैमिली को 2.5 साल के वीज़ा मिले थे, तो 2 साल बाद अब मेरा एक बच्चा जो है ना ब्रिटिश सिटीजन हो गया, उसे ब्रिटिश पासपोर्ट मिल गया। अब हमारी एक्सटेंशन है तकरीबन 5 माह बाद। क्या इस ब्रिटिश बच्चे की बेस पर मैं या मेरी बाकी फैमिली 10 ईयर का रूट चेंज करके 5 ईयर रूट पर जा सकते हैं? और मेरी तनख्वाह भी जो है ना वो तकरीबन 20,000 है जो बनती है, तो क्या मैं ये रूट 10 ईयर का ब्रिटिश सिटीजन बच्चे की बेस पर चेंज कर सकता हूँ, 5 ईयर पर जा सकता हूँ, या इंडेफिनिट कर सकता हूँ अप्लाई? बिल्कुल, ये लॉ बड़ा क्लियर है। लॉ ये कहता है कि अगर आपके पास यहाँ पे स्टेटस हो और आप बच्चे की बेस पे या पेरेंट्स की बेस के ऊपर 5 साल के रूट पे जा सकते हो। अब हुआ ये कि जब आपने पहले वीज़ा अप्लाई किया था, आपके पास स्टेटस नहीं था, अब बच्चे को जब आपको स्टेटस मिल गया और अब जो तमाम उसकी रिक्वायरमेंट्स हैं 5 साल वाली, आप 10 ईयर्स रूट को स्विच करते हुए 5 में जा सकते हैं, एज़ फार एज़ कि आप तमाम जो रिक्वायरमेंट पूरी कर रहे हैं। इनकम आपकी पूरी हो रही है, लीगलिटी आपकी पूरी हो गई और उसके बाद आपकी सूटेबिलिटी आ गई। एंड द थर्ड इज़ कि आपको अकोमोडेशन आपके पास है, या ऑफ कोर्स आप इस बेस को इसको यूटिलाइज़ करें और इस बेस्ट अपॉर्चुनिटी कि आप अपने 10 ईयर्स को कट करके 5 साल में लेके आ सकते हो। ऑफ कोर्स आप अप्लाई कर सकते हैं। आपकी कॉल का शुक्रिया, लेते हैं नेक्स्ट कॉल। जी फरमाइए। हेलो सर। जी फरमाइए। जी सर, मेरे 2 क्वेश्चन थे कि लाइक मेरी फैमिली इटालियन सिटीजन है, उन्होंने लाइक अभी शिफ्ट हुए हैं, उन्होंने वहाँ का रेजिडेंस कार्ड अप्लाई करना है, उसके लिए रिक्वायरमेंट क्या होगी? और मैं एज ए फैमिली मेंबर उनका हाउस, और मेरे जो डॉक्यूमेंट्स अप्लाई करना है उसके लिए क्या रिक्वायरमेंट्स होंगी? जॉब लेटर के साथ साथ सर्विस स्लिप कितनी चाहिए होंगी? राइट, कोई बात नहीं, सिंपल सी बात है। कोई यूरोपियन यहाँ पे यूके में आके रहना शुरू करता है, उसको यहाँ पे रेजिडेंस कार्ड अप्लाई करना चाहिए। जो उसके डिपेंडेंट हैं उनको भी साथ अप्लाई करना चाहिए एज ए डिपेंडेंट ऑफ द यूरोपियन नेशनल। अब आपके डॉक्यूमेंट्स क्या चाहिए? फर्स्ट के जो मेन एप्लीकेंट है वो यहाँ पे अपने यूरोपियन टीटी राइट को एक्सरसाइज कर रहे हैं, उसके लिए वो फुल टाइम स्टूडेंट है, फुल टाइम एम्प्लॉय है या सेल्फ एम्प्लॉय है, और उसके तमाम डॉक्यूमेंट्स उसके पास हैं। नंबर 2, उनके पास सफिशिएंट अकोमोडेशन हो, और थर्ड उनकी इंश्योरेंस हो। 3 चीज़ें हों तो आप एक सेम डे एप्लीकेशन कर सकते हो और सबकी एप्लीकेशन इकट्ठी जाएगी, उनको रेजिडेंस कार्ड मिलेगा, आपको एज ए डिपेंडेंट ऑफ 5 ईयर्स का वीज़ा मिल जाएगा। देन अपने 5 साल पूरे करते हुए आप सेटलमेंट रूट पर चले जाओगे। आपकी कॉल का शुक्रिया, लेते हैं नेक्स्ट कॉल। जी फरमाइए। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी मैंने आपसे पूछना है कि मेरे पास ना इंडेफिनेट लीव टू रिमेन है, मुझे नवंबर में मिला है, और मेरी बेटी है वो मतलब यहीं पर पैदा हुई है, 7.5 साल की है, स्कूल जा रही है, और तो मैंने उसके लिए ना भी 2 वीक पहले MN1 अप्लाई किया है थ्रू लॉयर। तो मैं ये पूछना चाहता हूँ कि
उसको स्टेटस मिल जाएगा? अगर मिलेगा तो क्या मिलेगा? किस तो बेस पे इस अपने बारे में MN1 मैं अप्लाई जानना किया मेरे चाहता भाई? हूँ। किस बेस जी? पे MN1 कैसे बेस किया अप्लाई किया आपने? MN बिकॉज मेरे पास सेटल स्टेटस है ना, ओके ठीक। तो उसकी बेस पे अप्लाई किया कि जी मतलब फादर के पास सेटल स्टेटस है, तो मतलब बेटी को मतलब यहाँ की नेशनलिटी मिलनी चाहिए, ओके राइट। जो भी है। हाँ जी, तो सवाल क्या आपका? तो इस बेस सवाल ये है कि मतलब वो मैंने अप्लाई किया, उसके क्या चांसेस हैं, वो उसको मिल जाएगा? मिलेगी। status लॉ ये मिलेगा? कहता है कि अगर वन ऑफ द और पेरेंट्स क्या मिलेगा? ओके, लॉ ये कहता है कि वन ऑफ द पेरेंट्स इज ब्रिटिश नेशनल और सेटल इन द यूके, अगर बच्चा जहाँ पैदा होता है तो MN1 अप्लाई करके उसको यहाँ पे नेशनलाइजेशन मिलेगी, फिर वो पास अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको सेटलमेंट हो और आपके पास इंडेफिनिट या नेशनलिटी हो और बच्चा पैदा हो तो फिर आपको MN1 अप्लाई करने की जरूरत नहीं है, आप स्टेट वे उसका पासपोर्ट अप्लाई कर सकते हो। ये दो डिफरेंट चीज़ें हैं। बट एनीवे आपके पास सेटलमेंट हो गया, बच्चा आपका पैदा हुआ था, आप उसको MN1 अप्लाई कर दिया आपने, वेट करें, उसको यहाँ पे नेशनलाइजेशन मिल जाएगी। आपकी कॉल का शुक्रिया। लेते हैं नेक्स्ट कॉल। जी फरमाइए। हेलो हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम जी। जी, मेरा नाम सोफिया है। मुझे आपसे पूछना था, मेरा जो है वो 2020 में इंडेफिनिट ड्यू है। अभी मुझे 3 साल का 2.5 साल का वही फिर वीजा मिला हुआ है, तो उसके लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट है? और मुझे एक और सवाल ये भी था कि जो मेरे हस्बैंड हैं वो यहाँ पे ब्रिटिश नेशनल है और मेरी 2 बेटियां भी हैं जो कि यहीं पे बॉर्न हुई हैं। अब ना हम लोग यूनिवर्सल क्रेडिट अप्लाई करना चाह रहे हैं, तो क्या उसकी मौजूदगी में भी हमारी वही 18,600 की रिक्वायरमेंट होगी या कुछ चेंजेस होंगे? ओके, पहले तो आंसर ये है कि जो लोग यहाँ पे स्पाउस वीज़े पे होते हैं तो उन पर उन्होंने कंडीशन लगाई है कि वो किसी किस्म के स्टेट के बेनिफिट नहीं ले सकते। जब आपने वीज़ा अप्लाई किया फर्स्ट एप्लीकेशन या एक्सटेंशन, तो उसमें आपने अंडरटेकिंग दिया था कि मेरे पास सफिशेंट सोर्स ऑफ इनकम है, मैं विदाउट रिकोर्स पब्लिक फंड अपने आप को या अपनी वाइफ को या अपने बच्चों को मेंटेन एंड अकोमोडेट कर सकता हूँ। अब वो आपका एफिडेविट भी उनके पास है, आपके पास इनकम भी पूरी करनी है, तो किसी किस्म का जो कंडीशन होती है कि आप किसी किस्म के स्टेट के बेनिफिट क्लेम ना करें। अगर आप वो करते हैं अनफॉर्चुनेटली तो फिर आपका केस वीक हो जाएगा। आप चेक कर लें कि अगर कोई ऐसी पोजीशन हो कि आप थोड़ा सा अगर स्ट्रगल करने भी पड़े तो मेक श्योर करें कि जब तक आपके पास इंडेफिनिट ना हो किसी किस्म के बेनिफिट क्लेम ना करें, अपार्ट फ्रॉम कि अगर वन ऑफ द पेरेंट्स इज ब्रिटिश नेशनल एंड यू कैन अप्लाई फॉर द चाइल्ड बेनिफिट। अदरवाइज try to be avoid to take any benefit or sort of any support, financial support from the government, क्योंकि ये कंडीशन है। बट अगर अनफॉर्चुनेटली कैसे हालात हैं कि बिल्कुल कोई सर्वाइवल कोई ऑप्शन नहीं है, देन कुड बी डिफरेंट सिनेरियो, बट डोंट टेक अ रिस्क, वरना वो आपको 10 ईयर्स के रूट में डाल देंगे, फिर आपको ह्यूमर्स की बेस के 10 साल पूरी करते हुए आपको इंडेफिनिट मिलेगा। आपकी कॉल का शुक्रिया। लेते हैं नेक्स्ट कॉल। जी फरमाइए। हेलो Hello. जी फरमाइए। Yeah, hello. Yeah, what it was, my wife passed a life in UK test, right? And she's passed a B1. I want to apply for British citizenship. Right. And she passed a B1 in. She passed a B1 and? Yeah, she passed a B1 in 2013, and she's passed a life in UK test. But I've been told by someone that the B1 that you require now, because that's not valid, it has to be done from a Trinity College. Is that true or not? Yep. This is right. So make sure, because I think this someone if they pass exam the B1 into the 13, and a lot of the providers means the institute, they know I think the on the list of the list anymore. So you need to check if anyone passed the exams in 13 of today. You need to check the list is valid for today or no. So make sure whether you can be check yourself or go to the solicitor, find properly, show the documents, let the check the list from the Home Office. If the institute or the provider is on the Home Office list, then of course you can rely. But if not, then you need to pass again. And of course the life in UK still is acceptable. And the B1 again you need to pass, and then you can apply for the nationality certificate over the MN1. Thanks for your call. बढ़ते हैं next call की तरफ। जी फरमाइए। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम जी। गुरु जी, सवाल था ये कि प्राइवेट लाइफ की बेस पे 2.5 साल का वीजा मिला था, राइट? ठीक है, और एक एक्सटेंशन के बाद 2 बच्चे 10 साल के हुए तो बोर्न यहाँ पे वे थे ब्रिटिश हो गए, ठीक है, क्या अभी वो 2 बच्चे ब्रिटिश हैं, क्या हस्बैंड एंड वाइफ इंडेफिनिट अप्लाई कर सकते हैं 5 साल के बाद? उन्होंने तो 10 रूट पे डाला, 10 ईयर पे डाला था। पर आपके तो गैप आ गया था ना? नहीं, कोई गैप नहीं है।
तो फिर बच्चों को क्यों मिला, ढाई साल के वीज़ा क्यों मिले थे आपको? नहीं, वो तो दोनों हस्बैंड वाइफ इलीगल थे ना। ओके, थैंक यू। हाँ जी, वो ये अभी बात हो रही थी, मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूँ इसको। लॉ ये कहता है कि अगर वन ऑफ द फैमिली पार्टनर इज़ अ ब्रिटिश नेशनल, तो जो उसका स्पाउस है उसको 5 साल का यहाँ पे स्टे करना पड़ेगा। अगर वो यहाँ से बाय लीगली स्विचिंग करता है फ्रॉम अदर कैटेगरी टू द स्पाउस वीज़ा, या वो फ़ॉरेन से आता है। लेकिन अगर कोई यहाँ पे ब्रिटिश नेशनल है, वो किसी ऐसे बंदे से या ऐसे पार्टनर से शादी करता है जो इलीगल है, और उसको 10 साल के रूट पे ह्यूमन की बेस पे वीज़ा मिलता है, तो उसको ढाई साल के 4 वीज़े पूरे करके फिर इंडेफिनिट मिल सकता है। लेकिन यहाँ पे मैं जस्ट एक्सप्लेन करता हूँ ये मतलब कोटेशन कि लेट से किसी को आप ब्रिटिश नेशनल थे, वाइफ के पास वीज़ा नहीं था, अब उसको वीज़ा मिल गया, अब उसके पास राइट है कि वो 10 साल को स्विच कर सकते हैं 2.5 साल के उस बेस पे कि वन ऑफ द फैमिली मेम्बर द स्पाउस इज़ अ ब्रिटिश नेशनल। सेम रूल अप्लाई होगा आपके बच्चों के, क्योंकि बच्चों के पास अब ब्रिटिश नेशनलिटी आ गई है। तो लॉ ये कहता है कि अगर चिल्ड्रन ब्रिटिश नेशनल हों तो पेरेंट्स के पास 2 रूट्स होते हैं, या वो 10 साल की बेस पे इंडेफिनिट पे जाएंगे या 5 साल की बेस पे इंडेफिनिट पे जाएंगे। लेकिन आपका सिनेरियो ये है कि अनफॉर्चुनेटली आपके पास स्टेटस नहीं था, अब आपके पास स्टेटस भी आ गया, बच्चे ब्रिटिश भी हो गए, और अब आपको वीज़ा 10 साल के रूट पे डाला हुआ है। सो क्या आप 10 साल वाले को कट करके 5 साल पे आ सकते हो? ऑफ कोर्स आप आ सकते हो। अब उसके लिए क्या फ़ायदा है कि आप लीगल हो गए, लीगलिटी वाला पार्ट आपका पूरा हो गया, सूटेबिलिटी हो गया, अकोमोडेशन हो गया, एंड रिलेशनशिप हो गया। तो फोर्थ जो उनकी रिक्वायरमेंट है वो पूरी हो रही हैं। ये पहले भी किसी कॉलर ने सवाल किया था, अब भी ये सवाल सेम है। ये 2 सिनेरियो आते हैं इस तरह के एप्लीकेशन के लिए। एक तो वो एप्लीकेशन कि जब बच्चों को नेशनलिटी मिल जाए और पेरेंट्स 10 साल के रूट पे हों, कि क्या वो 10 साल वाले जो कैटेगरी है उसको कट करके 5 साल पे जा सकते हैं? येस, दे कैन गो एज फार एज जो उसकी रिक्वायरमेंट है पूरी कर रहे हैं, उनकी इनकम हो, इंग्लिश पास की हो, बाकी उनके पास अकोमोडेशन हो, रिलेशनशिप हो, येस दे कैन गो। सेम सिनेरियो आता है कि अगर वन ऑफ द पार्टनर इज़ अ ब्रिटिश नेशनल और स्पाउस को वीज़ा मिलता है और 10 साल के रूट पे मिलता है उसको, और क्या वो उसके बाद 5 साल पे जा सकता है? उसको एक्सटेंशन की जरूरत, वेट करने की जरूरत नहीं है। द मिनट वो लीगल हो जाता है, बाकी रिक्वायरमेंट पूरी हो रही हैं, तो यस वो 10 साल वाले कैटेगरी को करके 5 साल पे उसको फास्ट ट्रैक में डाला जा सकता है। आपकी कॉल का शुक्रिया। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट कॉल की तरफ। जी फरमाइए। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम अंसर है, मैं बर्मिंघम से बात कर रहा हूँ। जी अंसर साहब, मेरी अपील, हम लोग की अपील अलाउ हुई है 7 ईयर की बेस पे। 4 वीक्स हो गए हैं, और 2 वीक्स के बाद हमें कोर्ट की जो फीस होती है वो भी रिफंड हो गई है। तो मुझे कैसे पता चलेगा कि होम ऑफिस आगे जा रहा है कि नहीं जा रहा? कैसे पता? आप वेट कर लें, जब अगर आपकी अपील अलाउ हो गई है तो फिर वो 4-6 वीक में अगर डिसीजन नहीं लिया, कुछ भी आपके पास लेटर नहीं आया आपको या आपके वकील को, तो इसका मतलब ये है कि जो होम ऑफिसर्स ने गिव अप कर दिया है और वो आपको वीज़ा ग्रांट करेंगे। लेकिन वीज़ा वो 3-4 माह के बाद आ सकता है, 2 माह के बाद आ सकता है। लेकिन एनीवे अगर कोई वो चैलेंज करते हैं तो आपको पता चल जाता है, जब आपके वकील को नोटिस आ जाता। अब कोई ऐसी नोटिफिकेशन आपको या आपके वकील को नहीं हुई, तो इसका मतलब ये हुआ कि होम ऑफिस ने उसको चैलेंज नहीं किया और अब आपको वीज़ा ग्रांट करेंगे। लेकिन आप इसमें कोई वरी ना करें, अब अलाउ हो गया है, वेट करें 2-4 वीक के बाद। अगर कोई टाइम इज़ नॉट इम्पोर्टेंट, वेट करें, जो भी उनका फिर रिप्लाई आएगा या कोई नोटिफिकेशन आता है उसके बाद आप अपना जो एक्शन होगा वो ले सकते हैं। आपकी कॉल का शुक्रिया नाज़रीन। मेरा और आपका साथ यहाँ तक जिन्होंने कॉल किया सरा उनका शुक्रिया। अगेन आज जो सबसे जो मेरा ख्याल है जो एडवाइस ऑफ द डे कह सकते हैं वो ये थी कि जो लोग 5-10 साल से 5 साल में जाना चाहते हों ऑन द बेस ऑफ के वन ऑफ द जो पार्टनर है वो ब्रिटिश हो जाए या चिल्ड्रन ब्रिटिश हो जाएं, तो यस वो जा सकते हैं। उनके लिए जो क्राइटेरिया वो पूरा करना है इन्फॉर्मेशन, क्योंकि वो 10 साल इसलिए भी डाले गया था कि वो लीगल नहीं थे। अब लीगल वाला खाता पूरा हो गया तो बाकी रिक्वायरमेंट पूरी हो रही हों तो ऑफ कोर्स ये जो ऑप्शन है ये अडॉप्ट की जा सकती है और ये बहुत अच्छा होता है। बजाय से अब 10 साल वेट करें, 5 साल में आपको इंडेफिनिट मिल जाए तो एक फास्ट रूट में आप आ जाते हैं। तो ये काफ़ी लोगों का सवाल था, इसलिए मैंने काफ़ी एक्सप्लेन किया, होपफुली कि आपको अंडरस्टैंड कर लिया होगा। इसलिए मुझे इजाज़त चाहिए। नेक्स्ट मंडे 6 o'clock मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।